स्मार्ट स्कूल ये मेरा स्कूल है। Assalamu alaikum students, this is Zoya here. Today we are going to start chapter number 3, advanced topics in MS Access. As we have studied MS Access in class 7, now let's recall it. Here is your MS Access icon. MS Access is used to store large amount of data in the form of table. This one is your table. You can store a large amount of data using MS Access database. And let's put it into practice. Open your Microsoft Access. Click blank database. Now type your database, your file name here, and click on Create tab. Creating table using table design view. Click Create tab. Now from the tables group, click table design. 3 columns are here. Now putting your field name here. Click OK. 3 of the field names are here. This one is your data type कि आपने फील्ड नेम के अंदर किस तरह का डाटा आपने टाइप किया। आपने यहाँ पे टेक्स्ट को टाइप किया तो यहाँ पे डाटा की टाइप आएगी टेक्स्ट। दिस वन इज़ योर डिस्क्रिप्शन। इफ़ यू वांट टू राइट समथिंग एक्स्ट्रा रिलेटेड टू फील्ड यू कैन राइट हियर इन डिस्क्रिप्शन फॉर योर ओन record. Now save your table. Click here. Click save your table name here. Click OK. अब वो आपसे कह रहे हैं देयर इज़ नो प्राइमरी की डिफाइंड। प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज रिकॉर्ड इन अ टेबल। जैसे आपके पास 10 पर्सन्स का रिकॉर्ड मौजूद है तो आप सबके लिए प्राइमरी की आइडेंटिफाई करोगे। प्राइमरी की को हम आईडी भी बोलते हैं, जैसे आपके रोल नंबर। क्लिक येस हियर। आपकी प्राइमरी की यहाँ पे असाइन हो गई है। दिस वन इज़ योर प्राइमरी की। Now double click your table here to open your table in data sheet view. This one is your data sheet view. अब आपने इन फील्ड के अंदर जो भी डाटा आपने टाइप करना है वो आप डाटा शीट के अंदर ही टाइप कर सकते हो। ये आपकी आईडी, नेम, फादर्स नेम, क्लास, ये सारी आपकी फील्ड्स के नेम है। नाउ आई एम रैंडमली पुटिंग योर डाटा। यू कैन सी हियर के ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्राइमरी की असाइन हो गई है। यूज टैब की टू मूव टू द नेक्स्ट फील्ड। राइट क्लिक हियर टू सेव योर टेबल। सेव योर टेबल हैज़ बीन सेव्ड। इफ यू वांट टू चेंज द व्यू click here. From the views group click view. Choose your view like design view. This one is your design view. Now again view, data sheet view, and this one is your data sheet view. Now open your book page 31. Primary key. Primary key uniquely identify record in a table. As you see before in your practical कि प्राइमरी की क्या करती है? यूनिकली आइडेंटिफाई करती है रिकॉर्ड इन अ टेबल। द वैल्यू इन प्राइमरी की फील्ड इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिकॉर्ड्स के फर्स्ट के लिए 1, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। द प्राइमरी की इंश्योर्स दैट देयर इज़ नो डाटा डुप्लीकेशन इनसाइड द टेबल। एज यू हैव लर्न मैनी ऑफ द एडवांटेज ऑफ DBMS मीन्स MS एक्सेस के आपने एडवांटेजेस पढ़े थे क्लास 7 में। उनमें से एक एडवांटेज ये भी है कि प्राइमरी की ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ट्रैकर के लिए असाइन हो जाती है, जैसे आपने हमारे प्रैक्टिकल में भी देखा था। नेक्स्ट वन इज़ क्रिएटिंग क्यूरी। सो व्हाट इज़ अ क्यूरी? इफ़ यू वांट to get some data from your table or database. This method is called query.
कि अगर आप अपने टेबल में से कोई स्पेसिफिक फील्ड को अगर आप पिक करना चाह रहे हो, सो यू कैन डू दिस बाय यूजिंग क्यूरी मेथड्स. There are two different methods available in MS Access for creating a query. First one is query wizard method. Second one is query design method. So let's see query wizard method first through practical. Open your table. Click create. Choose query wizard. New query dialog box will appear. Click simple query wizard. Now click on OK button. A simple query wizard dialog box will appear. Choose your field you want to select. You can click here to select your field one by one. You can also deselect your field using this. Like मुझे यहाँ पे अपने पूरे टेबल में से मुझे 3 ये फील्ड चाहिए, तो मैंने इनको सिलेक्ट कर लिए. Now click on next. Now put your title or name for your query. Click finish. You can see here your query has been created with the name simple query. ये है आपका ओरिजिनल टेबल जिसमें आपके पास आईडी, नेम, फादर्स नेम, क्लास ये वाली फील्ड मौजूद थी. उसमें से आपने जिन फील्ड को आपने सिलेक्ट किया था यूजिंग क्यूरी विजिट मेथड, वो फील्ड आपके सामने यहाँ पे आ गई है. Now creating a query using query design method. Open your table. Click create tab. Now choose query design. A table appear. A dialog box appear. Choose your table कि आपका जो डाटा है वो कौन सी टेबल में मौजूद है. आपने टेबल 2 की नेम से सेव किया था, सो आपने यहाँ पे क्लिक करना है. Now add your data. इसको आपने क्लोज करना है. Here is your properties of the field. फर्स्ट वन इज़ योर फील्ड कि आपकी फ़र्स्ट वाली फील्ड कौन सी है, आईडी. नेक्स्ट वन इज़ नेम, यहाँ पे आपने डाटा को अटैच करना है. थर्ड वन इज़ फादर्स नेम एंड द लास्ट वन इज़ क्लास. नेक्स्ट आपका टेबल कौन सा है, टेबल 2. यहाँ पे है सॉर्ट कि अगर आप अपने डाटे को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आना चाह रहे, सो यू कैन चूज़ फ्रॉम हेयर. ये है यहाँ पे शो कि आपने कौन सी फील्ड को आप शो नहीं करवाना चाह रहे, तो आपने उसको अनचेक कर देना है. तो मैं यहाँ पे फादर नेम को अनचेक कर रही हूँ. अब आप क्या करोगे, अपनी क्यूरी को आपने रन करवाना है. क्लिक हियर टू रन योर क्यूरी टू गेट योर रिज़ल्ट. आपके सामने आपका रिज़ल्ट है जिसमें आपकी आईडी, नेम और क्लास है. आपने फादर नेम को उसमें अनचेक कर दिया था. Okay students, do practice for your practical. Thank you. Allah Hafiz.